Hello, I'll explain from the topic pointer. I'll continue and till now we have finished uh, till the time complexity. Now I'll continue from the pointer. What is pointer? Basically, the pointer, the normal variable which वी डिक्लेयर पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जैसे कि हम पहले वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं सिंपली वेरिएबल का डाटा टाइप फिर वेरिएबल नेम अगर असाइन करना है कुछ वैल्यूज ओके तो सेम एज the variable which we declare or initialize before simple variable same like that only pointer is also a kind of variable पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस या लोकेशन स्टोर करता है वैल्यू नहीं जैसे किसी उसका वैल्यू स्टोर नहीं कर जैसे कि मैंने क्या स्टोर कैसे मैंने क्या किया पॉइंटर है ठीक है पॉइंटर जो है वो पॉइंटर है मैंने पॉइंटर पी नाम का एक वेरिएबल लिया उसमें मैंने इनिशियलाइज किया टू तो वो स्टोर करेगा उसका एड्रेस ना कि उसकी वैल्यू जैसे जो इनिशियलाइज किया वो वैल्यू स्टोर नहीं करेगा उसका एड्रेस स्टोर करेगा पॉइंटर बहुत सारे टाइप के होते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक होता है अरे ऑफ पॉइंटर होते हैं फोर अरिथमेटिक पॉइंटर होते हैं जैसे कि प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्लस माइनस ये सारे होते हैं चार टाइप के पॉइंटर एरे ऑफ पॉइंटर यू कैन डिफाइन एरे ऑफ होल्ड अ नंबर ऑफ द पॉइंटर जो होल्ड करेगा नंबर ऑफ पॉइंटर पॉइंटर टू अ पॉइंटर allow you to have pointer on a pointer and so on pointer to a pointer जैसे कि मैंने a को इनिशियलाइज किया 10 वैल्यू 10 है उसकी वैल्यू पॉइंट ए वेरिएबल है इनिशियलाइज किया इसका एड्रेस है 200 b को मैंने कुछ भी नहीं इनिशियलाइज किया एड्रेस है 300 तो b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a एड्रेस ऑफ ए मीनिंग एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस 200 है बी का एड्रेस क्या है 300 है तो ये जो है पॉइंट किसको कर रहा है एड्रेस ऑफ ए मीनिंग एड्रेस क्या है 200 है ये इसको पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ बी को तो बी पॉइंट्स द एड्रेस ऑफ ए इसका मतलब ए है ठीक है यहाँ पे बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए मीनिंग इट इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ बी एड्रेस ऑफ ए address of a meaning ampersand we represent with the help of ampersand meaning and program how we write the program include std.h standard input output library we usually we write int main will write every program inside the main function we initialize int a is equals to 5 integer a simple variable how we initialize the variable in data type variable name and the value which we want to initialize so we initialize like that only okay so data type pointer symbol static symbol b okay in pointer how we initialize *6b how we declare *6b then b is equals to ampersand of a ampersand of meaning it is pointing the address of a meaning address of a value is 5 but not address is not 5 it is just a value so b is pointing to the address of a so print the value of ampersand a it will print the value of a okay a value 5 okay 5 it will give first one will give 5 ampersand of a will ampersand of meaning it is pointing to the address of a so address of a what the value is there 5 it will give okay then second it will first will give the second will give the this value of a asterisk b it will give the address of b because pointer will point the address of that variable so as 6b meaning it will give the address of b it will give the value of a ampersand a it will give the ampersand a we have already taken so just opposite minus it will give so address of b it will give the address of b value and b it will give the address of b value okay program to pointer address studio.h how we are writing the program here we are using double pointer okay we initialize a is equals to 5 and asterisk b pointer b and then double pointer c b ampersand a meaning ampersand a it is pointing the address of a address of b so it will give the address of value of a value of v address of a value of v address of a it will give the address of value of v and address of
because b is equals to address of a, so it will give the address of a. And then value of c, address of b, c is equals to address of b na, so it will give the address of c. It will give the, it will give the address of b. So address of c is equals to address of b, it will give the c. What is c? C is equals to address of b, it will give the address of b. Address of c, c is equals to address, ampersand c, it will give the address of c. Structure. What is structure? Structure is a composite data type that defines the group or list of the variable that are to be placed under one name in block of the memory. Structure क्या है? Structure एक composite data type है that define a group of list of variable. मतलब कि कोई किसी, ये एक डाटा स्ट्रक्चर, एक डाटा टाइप, ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि एक एक कंपोजिशन डाटा टाइप का स्टोर करता है, ग्रुप ऑफ लिस्ट ऑफ वेरिएबल जैसे इंटीजर, फ्लोट, पॉइंटर, ये सारे को एक साथ स्टोर कर लेगा. ओके. कंपोजिट डाटा स्ट्रक्चर इज कंपोजिट डाटा टाइप दैट स्टोर द ग्रुप ऑफ लिस्ट ऑफ वेरिएबल दैट आर टू बी स्टोर अंडर वन नेम. जैसे कि मैंने नेम दिया डाटा स्ट्रक्चर का, उस नेम के अंदर ये सारे डाटा टाइप को एक साथ स्टोर कर सकता है, ये होता है स्ट्रक्चर. ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी. प्रोग्राम, इसका क्या है? प्रोग्राम स्ट्रक, स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक डाटा टाइप है, स्ट्रक्चर नेम स्ट्रक्चर का नेम है. फिर डाटा टाइप मेंबर, जैसे डाटा टाइप इंटीजर लिया, मेंबर लिया मैंने, आईडी. डाटा टाइप मैंने लिया फ्लोट, फिर लिया सैलरी, लाइक दैट ये स्टोर करेगा सारे डाटा टाइप को एक में. ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका सिंटेक्स है. एडवांटेज क्या डाटा स्ट्रक्चर का? इट कैन होल्ड अ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप. डिफरेंट डाटा टाइप का वेरिएबल होल्ड कर सकता है एक एक नेम में, एक स्ट्रक्चर नेम में. वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट. हम क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट जो कंटेन करे डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट को. और इट also allows to reuse the data layout across the program. ये अलाउ करता है हमें रीयूज करने के लिए डाटा, जो डाटा हम स्टोर किया है उसको ले, उस लेआउट को हम होल प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं. इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट अदर डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, क्यू, ट्री, ग्राफ. हम स्ट्रक्चर को हम लिंक लिस्ट में यूज कर सकते हैं, क्यू में यूज करते हैं, ट्री में यूज कर सकते हैं, ग्राफ में यूज कर सकते हैं. ठीक है. प्रोग्राम, हाउ टू यूज स्ट्रक्चर इन अ प्रोग्राम. कैसे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने लिया एक स्टूडियो इनपुट आउटपुट, एक लाइब्रेरी लिया. फिर कोनियो डॉट कंसोल, कंसोल लाइब्रेरी लिया. वाइड मेन के अंदर लिखा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मैंने एक किया, लिखा मैंने का डाटा, मैंने लिखा कीवर्ड स्ट्रक. फिर एम्प्लॉय डाटा स्ट्रक्चर का नाम लिखा. उसके अंदर मैंने पहला डाटा इनिशियलाइज मैंने क्या डिक्लेयर किया, इंट ना आईडी, फिर फ्लोट, सैलरी, फिर मोबाइल. ये मैंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया. उसके बाद मैंने क्या किया, स्ट्रक एम्प्लॉय E1, E2, E3, E4. ठीक है. ये इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर. ओके. हम कैसे वो मैंने डिक्लेयर कर दिया. ठीक है. स्ट्रक्चर को अब मैंने कैसे यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर को प्रोग्राम में. तो मैंने क्या किया, स्ट्रक एम्प्लॉय E1, E2 मेंबर एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, यहाँ पे हमेशा याद रखना. तो मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय E1, E2, E3 लिखा. ठीक है. मेंबर एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज होते हैं यहाँ पे. जैसे रोल नंबर, मार्क्स, जो भी है, मतलब वहाँ पे E1, E2, E3 है, उसमें है. तो यहाँ पे E1, E2, E3, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, ये सब लिख लिया मैंने. प्रिंट इंटर आईडी सैलरी, हमको प्रिंट करना सैलरी एंड मोबाइल नंबर.
प्रिंट करना है। उसके बाद मैंने इनपुट लिया E1 डॉट आई डी डॉट एक्सेस करने के लिए हमेशा हम डॉट ऑपरेटर E1 डॉट सैलरी एक्सेस करना E1 डॉट मोबाइल नंबर, तो E1 डॉट आई डी E1 डॉट सैलरी E1 डॉट मोबाइल नंबर E1 डॉट E3 डॉट एम्प्लॉय 1 का आई डी एम्प्लॉय 1 का सैलरी एम्प्लॉय 1 का मोबाइल एम्प्लॉय 2 का आईडी। इसको हम प्रोग्राम में कैसे यूज कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर को ऊपर जो डिक्लेयर किया है E2 डॉट सैलरी E2 डॉट मोबाइल E3 डॉट आई डी एम्प्लॉय का सैलरी एम्प्लॉय 3 का मोबाइल। फिर इंटर्ड रिजल्ट, रिजल्ट हमें कैसे प्रिंट करना है, परसेंट डी ये हो गया हमारा आईडी सैलरी मोबाइल नंबर, ये एम्प्लॉय का नंबर मोबाइल नंबर मोबाइल टू एम्प्लॉय 2 का मोबाइल नंबर एम्प्लॉय 3 का मोबाइल नंबर लिख लिया मैंने। गेस द आउटपुट एंड विच इज टू बी, यू हैव टू गिव द आंसर फॉर दिस। अरे try learn and if you won't understand again you see and you will give try to get the answer of this question. Array are define or else tell me, I'll explain. Array are defined as collection of similar type of data item stored at contiguous memory location. Array are defined as collection, ये define a collection of similar data type of the items stored at contiguous memory location. स्टोर होता है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। अरे जो है डिफाइन होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिमिलर डाटा टाइप को ये स्टोर करता है, बट ये स्टोर होता है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, मतलब एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद दूसरा। Array is the simplest data structure where each data are stored. Array simplest data structure होता है जहाँ पे एक एक डाटा को हम यूज कर सकते हैं। डाटा एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस, हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स, इंडेक्स का यूज करके हम उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, इसका सिंटेक्स है इंट, मैंने डाटा टाइप लिखा, अरे का नाम लिखा, फिर उसका क्या साइज चाहिए वो लिख लिया, फिर डाटा टाइप अरे नेम क्या साइज, ये हमारी स्टैटिक अरे हैं सारी। प्रोग्राम विद विदाउट अरे, ये विदाउट अरे का प्रोग्राम है बिना यूज करे। इंट मार्क्स 56 मैंने वेरिएबल बनाया इंट मार्क्स का, 56 डाला, मार्क्स तो मार्क्स मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 लिख दिया। फ्लोट एवरेज निकालना, मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स डिवाइड बाई 3 प्रिंट एवरेज, ये विदाउट एवरेज विदाउट एरे का यूज करके कि हमने मार्क्स 1 को मार्क्स 1 का वेरिएबल बनाया, फिर उसमें इनिशियलाइज किया, फिर मार्क्स 2 का वेरिएबल बनाया, उसमें इनिशियलाइज किया, मार्क्स 3 का वेरिएबल बनाया, फिर उसमें इनिशियलाइज किया, फिर एवरेज निकाला सबको ऐड करके डिवाइड बाई द टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स। प्रोग्राम बाय यूजिंग अरे इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं हम। जैसे मार्क्स को लिखा मैंने, मार्क्स मैंने साइज कितना चाहिए, 3 है, 3 मार्क्स चाहिए तो 3 लिख दिया, उसमें नाम मार्क्स डाल दिया 56 78 ने। इंट आई एक वेरिएबल लिया, उसके बाद फ्लोट एवरेज एक वेरिएबल लिया जिसमें मैं एवरेज निकालना, फॉर लूप चला दिया, 3 तक चला दिया। 3 तक चलाने के बाद मैंने एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज प्लस मार्क्स बाई आई प्रिंट एवरेज, एवरेज मैंने लिया ही था, एवरेज प्लस मार्क्स बाई आई, एवरेज प्लस मार्क्स, एवरेज है जो मार्क्स आई को ऐड कर दो और जो एवरेज है उसको ऐड कर दो, प्रिंट एवरेज कर दो, जो एवरेज आ जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अरे ऑपरेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिदम, एवरेज केस वर्स्ट केस। एक्सेस करना है बिग O ऑफ 1, एवरेज केस हो गया, बिग O ऑफ 1 वर्स्ट केस हो। सर्च के लिए बिग O ऑफ, एक्सेस करने के लिए बिग O ऑफ, क्योंकि हम एक्सेस करें 1 2 3 जा करके ना इसलिए, और सर्च करें ये नंबर तक सर्च करें इसलिए बिग O ऑफ एन, बिग O ऑफ एन। इंसर्च करें एन, नंबर ऑफ इंसर्शन करें एन तक जाकर इंसर्ट किसी पे भी कर सकते हैं बिग O ऑफ एन, बिग O ऑफ एन। डिलीशन करें कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं इसलिए बिग O ऑफ एन, लेकिन एक्सेस करें तो उसमें डिफाइन होता है यहाँ तक एक्सेस करना, बिग O ऑफ एन कांस्टेंट है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन एरे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर वर्स्ट केसेस बिग O ऑफ एन, हमेशा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एरे में बिग O ऑफ एन होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस के लिए बिग O ऑफ एन। memory allocation of the array, each element in an array represented by indexing of array can be defined in three ways। हम ये सारे एलिमेंट को एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडेक्सिंग से। एरे के डिफाइन होता है 3 वे, 3 तरीके से। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर सकते हैं, 0 1 2 3, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे विल बी एरे जीरो इंडेक्स। हम 3 तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हैं। मेमोरी एलोकेशन ऑफ द एरे कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, 3 तरीके से इंडेक्सिंग है, जीरो बेस इंडेक्सिंग, वन बेस्ड इंडेक्सिंग, एन बेस्ड। वन बेस में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे विल बी वन,
N-based indexing, the first element of array can be reside at any random index, किसी भी random index पे, n 4 5 6 कोई भी लिख सकते हैं, बिग O of 0 1 2 3 हो जाएगा, n नंबर 0 नंबर 1, तीन तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हैं। बेस इंडेक्स एड्रेस, ये हो जाएगा हमारा फिगर हिंट अरे 5, 5 के लिए 0 1 2 3 4 5, इफ वी आर giving the size 5 meaning it is starting from 0 1 2 3 4, array of 0, array name size 0, index 0, array 1, and the name indexing 1, name indexing 2, name indexing 3, name indexing 4। एक्सेस एलिमेंट ऑफ एन एरे, एक्सेसिंग कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट एरे का, टू एक्सेस एनी रैंडम एलिमेंट ऑफ एन एरे वी नीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के ये सारी तीन इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला तो बेस एड्रेस ऑफ द एरे चाहिए, फिर साइज एलिमेंट इन बाइट चाहिए, फिर विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग एरे फॉलो, कौन सा टाइप इंडेक्स फॉलो कर रहा है। पहला बेस एड्रेस चाहिए, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2, साइज ऑफ क्या साइज है, बाई क्या साइज है, उसके बाद विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग है, जीरो बेस्ड है कि वन बेस्ड है कि वेरियन बेस्ड है। एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ वन डी एरे कैन बी कैलकुलेटेड, एड्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाइट एड्रेस ऑफ एलिमेंट ए ऑफ आई इसको सिर्फ बेस एड्रेस प्लस साइज इनटू फर्स्ट इंडेक्सिंग बेस एड्रेस। एग्जांपल, in an array minus 10, first is example, we are taking array, element are minus 10 to 2, base in address is ggg, size of an element is equals to 2 byte, find the location of a minus 1, a minus 1 ggg plus minus 1 plus into 2, 999 plus 19 plus 18, location of a minus 1017, passing an array to the function. I'll explain you, that is not important. Passing array to the function, the number of the array represent the starting address of the first element at the time array. Include first passing array to the function. How will pass the array into the function? First, uh, we'll summation will take the name as a summation, array will not initialize, void main int array will initialize the array, and we'll declare the array sum summation array, then print sum, and then summation int array, summation a of I, summation sum plus array of I, return the sum. Now 2D array. 2D array can be defined as the array of array. 2D array is organized as a matrix which can be represented as collection of rows or columns. How to declare 2D array? The syntax for declaration of 2D array is as follows. Syntax क्या है 2D array को declare करने का, ये बताता है array max rows max column, max rows max column, int array max rows max column. However, it produces the data structure which looks like following, जैसे कि मैंने किया 0 0 पे ए रो के लिए कॉलम के लिए, ठीक है, आई जे 0 0 0 1 0 2। 2D अरे इज नथिंग बट जहाँ पे दो डायमेंशन हो, एक रो एक कॉलम, और वहाँ पे ये मैट्रिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। यहाँ पे रो कॉलम, यहाँ पे क्या होता है 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 मीनिंग रो इज 0 कॉलम इज 1, रो इज 0 कॉलम इज 1, रो इज 0 कॉलम इज 0, रो इज 0 कॉलम इज 1, 0 इज 0 कॉलम इज 2, रो इज 0 कॉलम, like that it will go। How to access data in 2D array? Due to the fact that element of 2D array can be random access, randomly we can access the index is equals to of ij, where ij are the rows and column respectively initializing of the 2D array. 2D array, the syntax to declare and initialize 2D array is given below. How will initialize? Initializing array
First for row, then for 2 by 2 matrix. Row, column. Row is 2, column is 2. 2 by 2 matrix. Okay, so we are initializing 0, 1, 2, 3, 4. The number of the element in 2D array is number of rows is 2 into number of column is 2. 2 into 2 is 4. Number of the element 2D array, how we can find 4 elements. So how much element are there? 1 2 3 4. 4 element are there. Mapping 2D to 1D array. The size of 2D array is equal to the multiplication of number of 2 array and the number of the column representing the array. 3 by 3 times. जैसे कि हमें निकालना है कि साइज ऑफ 2D अरे का, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ रो एंड कॉलम. जैसे 3 by 3 मैट्रिक्स दिया है तो 3 into 3 9. तो कितने, द टू डायमेंशन अरे इज 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Column index is 0 1 2 3. 3 into 3 is 9. There are two main technique of storing 2D array. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. There are two main technique of storing 2D array into memory. दो टेक्निक है स्टोर करने के लिए. Row measure ordering. In row measure ordering, all the rows of 2D array are stored in memory. जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A33 ऐसे स्टोर कर सकते हैं. और कॉलम मेजर अकॉर्डिंग टू द कॉलम एड्रेस का 1 1 2 2 ऐसे ऐसे स्टोर कर सकते हैं. Or by row measure ordering, if row array is declared in AMN, where M is the number of the row, where N is the number of the column, there the address of the element Aij is calculated. Address Aij is equals to VA into ये हो जाएगा size of by column measure at Aij is equals to linked list. I'll explain you in the next session this one.